بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ سردیوں کے دن تھے اور میں فصلوں میں بیٹھی ساگ صاف کرنے میں مگن تھی۔ آج میرے سر کے سائیں میرے شوہر بشیرے نے ساگ کی فرمائش کی تھی۔ ابھی میں ساگ چھیل ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارا ایک محلے دار رحیم آیا اور بولا، غضب ہو گیا روبینہ مائی، غضب ہو گیا۔ میرے ساگ کاٹتے ہاتھ ایک دم رک گئے اور میں نے حیرت سے اس کی جانب نظریں گھما کر دیکھا کہ کیا ہو گیا ہے رحیم، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تب اس نے کہا، روبینہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تمہارے بچے اس میں جل گئے ہیں، جلدی گھر پہنچو اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے تو جیسے ہاتھوں پیروں سے جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور گھر کی جانب لپکی۔ تبھی رحیم نے کہا کہ تمہارا گھر یہاں سے دور ہے، میں ایک گاڑی پر آیا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں واقعی جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں روتی جا رہی تھی، مجھے اپنے بچوں کی فکر ستا رہی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر میری آنکھیں آنسو سے لبریز رہیں۔ جب مجھے احساس ہوا کہ اتنا سفر طے کرنے کے باوجود اب تک میں گھر نہیں پہنچی تو میں نے ایک دم سڑک کی جانب دیکھا۔ وہ راستہ کوئی اور تھا، کیونکہ میرے گھر کا راستہ تو گاڑی پر 5 منٹ میں طے ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا وہم اٹھا۔ میں نے فوراً ہی رحیم سے پوچھا کہ گھر کب پہنچیں گے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ تو مجھے کس راستے پر لے آئے ہو اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری اس بات پر بھی وہ خاموش رہا۔ تب میں سارا کھیل سمجھ گئی۔ وہ مجھے بہانے سے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ میں فوراً چیخنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا۔ تبھی گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے صحن میں جا رکی اور رحیم گاڑی سے اتر گیا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد میں نے رحیم کی آواز سنی۔ وہ کسی کو کہہ رہا تھا، یہ لیں چودھری صاحب، آپ کی امانت لے کر آ گیا ہوں۔ میں اس آدمی کی شکل نہیں دیکھ پائی، لیکن میں نے دیکھا کسی نے رحیم کو نوٹوں کی گڈی دی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو لوگ مجھے یہاں لائے ہیں وہ میری سوچ سے بھی کئی گنا طاقتور ہیں۔ میں نے گاڑی سے قدم باہر نکالے ہی تھے کہ 2 ہٹے کٹے نوجوان آئے اور مجھے زبردستی پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں ان کے سامنے منت کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر چلتے بنے۔ میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آنسو میری آنکھوں سے ابلنے لگے۔ میرے ذہن میں بار بار میرے شوہر اور بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ میرے 5 بچے تھے اور 5 بیٹے تھے، ہر ایک میں میری جان بسی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بیٹھ کر اپنی بے بسی کا ماتم کرتی رہی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے میرے سامنے کچھ کاغذات رکھ دیے اور کہا، ان پر دستخط کرو۔ کاغذات دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں کہ دستخط کر سکوں، اور میں ایسا کروں گی بھی کیوں؟ نہ جانے تم لوگوں نے اس پر کیا لکھا ہے؟ تب اس آدمی نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑے ہی تمسخرانہ انداز میں کہا، تم پڑھنا نہیں جانتی، دستخط نہیں جانتی، لیکن انگوٹھا لگانا تو جانتی ہو نا؟ یہ کاغذ تمہاری خلا کے کاغذ ہے، اس کے بعد تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری تو جان حلق میں آ گئی۔ میں نے اس شخص کی جانب کاٹدار نظروں سے دیکھا اور کہا، میں ہرگز کوئی دستخط نہیں کروں گی، کسی طور پر تم لوگوں کو تمہارے گندے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تب اس شخص نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میرے منہ سے درد کے مارے کراہ نکلنے ہی والی تھی کہ اس شخص نے کہا، اگر تو اس پر انگوٹھا نہیں لگائے گی تو تیرے بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ پھر وہ کاغذ میرے منہ پر مارتا وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کی بات سن کر وہیں زمین پر بیٹھی کسی سکتے کے عالم میں خاموش آنسو بہانے لگی۔ میں اپنے شوہر بشیرے سے بہت محبت کرتی تھی، کسی طرح بھی اسے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی محبت اور بچوں کے ساتھ مامتا کے رشتے کا سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب ہول اٹھنے لگتے۔
लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं इन कागजात पर कोई अंगूठा नहीं लगाने वाली थी। अभी उस शख्स को गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक मर्तबा फिर से इस कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई औरत कमरे में दाखिल हुई। वो शायद वहाँ की मुलाजिमा थी। उसने मेरे आगे खाना रखा और वापस मुड़ने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम तो औरत हो ना, मेरा दुख समझती हो, तुम ही मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। तब वो पीछे मुड़ी, मेरी तरफ तरस खाती नज़रों से देखते हुए बोली, मैं औरत हूँ, लेकिन मैंने इस हवेली का नमक खाया है और इस हवेली से नमक हरामी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस कागज़ पर दस्तखत करो, वरना ये लोग अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के हैं, सचमुच तुम्हारे बच्चों की जान ले लेंगे। उसका लहजा इस कदर हतमी और काटदार था कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से उसके लहजे के पीछे की सख्ती को महसूस कर सकता था। मेरे तो उसकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। यानी अब मुझे अपने बच्चों के लिए ये सब करना था, लेकिन मैं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। बड़ी देर सोचने, अपनी बेबसी पर मातम कना होने के बाद आखिर मैंने उन कागजात पर अंगूठा लगा ही लिया, लेकिन मेरे आंसू ने इन कागजात को भी भिगो दिया। आज ये फैसला एक बीवी ने नहीं, एक माँ ने किया था। मैं जिससे दूर रहकर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, आज मुझे उससे खुला लेना पड़ी। मैं अल्लाह की इस नाइंसाफ़ी पर बड़ी नाला थी। वो रात मेरे ऊपर किसी क़यामत की तरह गुजरी। अगली सुबह नौकरानी नाश्ता देने आई तो वो कागजात भी वहाँ से ले गई। मैं बुत बनी दीवार से टेक लगाकर बैठी अपनी किस्मत का सोग मनाती रही। 2 दिन के बाद मुझे तलाक का नोटिस मिल गया। अब मेरी ज़िंदगी में खुशियों की जगह दुखों ने ले ली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो नौकरानी भी खामोशी से आती, मुझे खाना देकर चली जाती। यूँ लगता जैसे मैं इनकी ज़र खरीद गुलाम हूँ। मैं उस कमरे में बंद हर वक्त रोती रहती। तन्हाई और बच्चों की यादें मुझे काट खाने को दौड़ती। इस कमरे में एक खिड़की थी जो शायद हवेली के अंदर की जानिब खुलती थी। जब मैं इस खिड़की को खोलती, मुझे हवेली में औरतें नजर आती, जिनमें से बहुत सी नौजवान लड़कियां होती और कुछ कम उम्र बच्चियां होती। कभी मैंने इस हवेली में किसी मर्द को नहीं देखा था। न जाने ये सब लड़कियां वहाँ क्या करती फिरती थीं। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं हर रात अल्लाह ताला की इबादत में मगन होती गई। आखिरकार मेरी इद्दत के दिन ख़त्म हो गए और जिस रोज़ इद्दत ख़त्म हुई, उससे अगले ही दिन मेरे उस कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर एक बड़ी उम्र की नौकरानी एक बड़े से थाल में कुछ सामान रखकर अंदर ले आई। उस थाल पर कपड़ा डला हुआ था। वो शायद इस घर की कोई ख़ास मुलाजिमा थी। उसके साथ 2 लड़कियां भी थीं जिन्होंने डब्बे पकड़ रखे थे। यूँ लगता था जैसे किसी शहर से आई हूँ। उस औरत ने अंदर आते ही कहा, ओ बीबी, आज तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है। मैंने हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो बोली, घूर क्या रही है, ये जोड़ा पहन ले जाकर और ये लड़कियां तुझे तैयार करेंगी। ये कहकर उसने एक सुर्ख रंग का लाल चमचमाता दुपट्टा मेरे सामने रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ इतना अफरा तफरी में क्यों हो रहा है, लेकिन उस औरत का रोब इतना ज़्यादा था कि उसने एक मर्तबा फिर से गिरफ्तार आवाज़ में मुझे लिबास तब्दील करने की तलकीन की तो मजबूरन मुझे उठकर जाना पड़ा। लेकिन मेरे कदम तो जैसे जंजीर हो गए थे। मैं किससे और क्यों शादी कर रही थी, मैं ये समझने से कासिर थी। जोड़ा पहनकर आई तो इन लड़कियों ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया। उस पूरे दौरानिये में मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमता रहा जब मैं बशीरे की दुल्हन बनी थी। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि तब मेरे पास इतने कीमती जोड़े और सजावट का सामान नहीं था, लेकिन बशीरे की मोहब्बत का रंग तब भी मुझ पर खूब चढ़ा था। अब मैं 5 बच्चों की माँ होने के बावजूद कहीं से उम्र रसीदा नहीं लगती थी। मेरे नुकूश आज भी इतनी अहलियत रखते थे कि किसी का भी दिल मोह लेते। खैर, तैयार होने के कुछ देर बाद ही मौलवी साहिब कमरे में आ गए। इन्होंने मेरा निकाह किसी चौधरी दिलावर से करवा दिया। उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती, ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने भीगी आंखों, लरसते हाथों के साथ इस निकाह को कबूल तो कर लिया, मगर मेरे दिल की क्या कैफियत थी, ये तो मैं ही जानती थी। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में ले जाया गया। मुझे अपने और बशीरे की शादी का वो वक्त याद आ रहा था जो बेहद हसीन था। हमारे पास कीमती सामान न था, पर हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए कीमती थी, और उस दिन किए जाने वाले अहदो पैमा मेरे दिल पर नक्श हो गए थे। मेरा दिल चाहा
इस कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दूं। शायद मैं दुनिया की वो पहली दुल्हन थी जिसने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था। और फिर वो शख्स जो मेरी इस हालत का जिम्मेदार था वो कमरे में आ गया। वो मेरे पास आया और उसने आकर अपने चेहरे पर सजा वो सेहरा हटाया तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखों में बहुत हैरत उभरी, क्योंकि वो अच्छा खासा गबरू जवान आदमी था। चेहरे के खदुखाल बेहद दिलकश और हसीन थे और ये काफी खानदानी शख्स लग रहा था। लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत मेरे बशीरे के सामने उसकी ये खूबसूरती मान पड़ रही थी। मैं उस पर नजर पड़ते ही माजी की यादों में खो गई। तभी उसने मेरा हाथ थामा और सोने का कंगन पहना कर कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मैंने एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मैं उस नामुराद की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैंने उसकी जानिब से नजरें फेर ली और कहा, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी अपने शौहर का रुतबा नहीं दूंगी तुम्हें। मैं बुरी तरह चीखने लगी और पागलों की तरह उस पर बरसने लगी। वो बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोला, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें सारी बात सच बताता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से सवालिया निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तब उसने कहा, मैं चौधरी मुश्ताक का इकलौता बेटा चौधरी दिलावर हूँ। मैंने 4 शादियां की, लेकिन अब तक मेरी कोई भी औलाद बेटा नहीं हुई। इन सब में से सिर्फ मेरी बेटियां ही हुई हैं। मुझे अपनी इस नस्ल का खात्मा नहीं करना था। सो जब मुझे मालूम हुआ कि साथ वाले गांव में एक ऐसी औरत है जो पिछले 5 सालों से मुसलसल 5 बेटे पैदा कर चुकी है, तो मैं उसी वक्त तुमसे शादी करने का सोच चुका था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा भी बेटा हो। और ये कहकर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं जानता हूँ मेरा ये तरीका गलत है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। ये कहकर वो वापस उठकर जाने लगा। मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हें वारिस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, अगर सचमुच यहाँ बच्चे की गर्ज से लाए हो तो मैं जैसे ही तुम्हें वारिस दूंगी, तुम्हें मुझे इस रिश्ते से आजाद करना होगा। मेरी ये बात सुनकर एक लम्हे को वो खामोश हो गया, लेकिन फिर उसने इस चीज की हामी भरी और मुझसे वादा किया कि जैसे ही मैं उसे वारिस दूंगी वो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर देगा। अब मैं दिन रात यही दुआ करती कि अल्लाह जल्दी से मुझे इस हवेली का वारिस दे दे। यहाँ मेरा दिल नहीं लगता था। हर वक्त अपना माजी याद आता, अपने बच्चे याद आता। चौधरी साहिब मेरा बहुत ख्याल रखते। हर हफ्ते दाई को बुलवाकर मेरा चेकअप करवाते, लेकिन कोई अच्छी खबर न मिलती और मेरे अंदर की मायूसी बढ़ती जाती। मेरा दिल चाहता कि किसी न किसी तरह बेटे की माँ बनूं। मैं जब पहले भी मेरी औलाद होने वाली थी, अल्लाह से शिद्दत से दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे बेटी दे, लेकिन हर बार वो मुझे बेटे से नवाजता। अब की बार मैं जल्द अज जल्द बेटे की माँ बनना चाहती थी। शादी को तकरीबन 3 माह गुजर गए। मेरे अंदर अजीब सी मायूसी पैदा होने लगी थी। फिर अल्लाह की करनी ऐसी कि मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन हवेली में जैसे जश्न का समा था। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया। हर तरफ ढोल की थाप पर लोग रक्स करते दिखाई दे रहे थे। मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी और न जाने क्या कुछ। इन लोगों की इतनी खुशी देखने के बाद मेरी दुआओं में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई। मैं किसी तौर पर भी बेटी पैदा नहीं करना चाहती थी। दुआ करती कि बेटा ही हो और यहाँ से आज़ाद होकर मैं अपने शौहर और बच्चों के पास जाऊं। इस घर में मेरा पूरी तरह ख्याल रखा जाता था। मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। मैं हर वक्त औलादे नरीना के लिए दुआ करती। एक नौकरानी खास तौर पर मेरी खिदमत गुजारी पर मामूर कर दी गई थी। मुझे ज़मीन पर पाँव तक लगाने नहीं दिया जाता था। यूँ समझ ले कि मैं महारानियों की तरह तख्त पर बैठती। पूरी हवेली का हर फर्द मेरे इशारों पर रक्स करता। वक्त गुजरता गया। मैं दिन रात बेटे की आरज़ू में दुआएं मांगने लगी। फिर वो वक्त आ ही गया जब एक रोज़ चौधरी साहिब दूसरे शहर काम के घर से गए हुए थे कि अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। चौधरियों की ख़ानदानी दाई को बुलवाया गया। तकलीफ़ की शिद्दत से मैं गुजरी वो मरहला पार ही हो गया, लेकिन मेरे औसान उस वक्त खता हुए जब दाई ने बताया कि तुम्हें बेटी हुई है। ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद का खून ही निचड़ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे आंसू मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे अपनी वापसी के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे थे। इस कदर ज़ारो कतार रोता देखकर दाई कहने लगी, बेटी तुम इस कदर रो क्यों रही हो?
अब तो बच्चा पैदा हो चुका है। दाई के लहजे में बहुत शफकत थी और यही शफकत देखकर मैंने उसे अपने दिल का हाल कह डाला। मैंने उसे बताया कि इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे बेटे की हवस में शादी की है। अब अगर इसे पता लगेगा कि ये औलाद बेटी है तो ये मुझे वापस नहीं जाने देगा। मैं वापस ना गई तो मेरे 5 बेटों का क्या होगा, वो तो दरबदर हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से रोने लगी। मैं जानती थी कि औलाद में औरत का इख्तियार नहीं होता, ये मर्द के नसीब से होती है। बेटा हो या बेटी, मर्द की किस्मत होती है। इसीलिए तो 4 शादियों के बावजूद चौधरी साहिब का बेटा नहीं हुआ था। मेरी बातें सुनकर दाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी तुम परेशान ना हो। अभी चंद लम्हे पहले इस हवेली के एक सर्वेंट क्वार्टर में मेरी बेटी ने बेटा जन्म दिया है। मैं इस बच्ची को उससे बदल देती हूँ। वैसे भी अब तक किसी को इस बात की खबर नहीं हुई कि तुमने बेटी पैदा की है। चौधरी साहिब हवेली से बाहर हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। उसने ये कहा तो मेरे अंदर एक मतलबी रूह जाग उठी। मैंने उसे फौरन हाँ कर दी और कहा, बस मुझे किसी तरह मेरे बच्चों के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस ताई ने बुर्का पहना और बाहर सबको यही कहा कि अभी कोई अंदर ना जाए, पैदाइश में अभी वक्त है, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। उसने बच्चे को बुर्के में छुपा रखा था। वहां जाकर उसने अपनी बेटी को बात करने के लिए किस तरह से रजामंद किया ये एक अलग बात है, लेकिन वो बच्चा लेकर मेरे कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में हवेली में ये खबर फैला दी गई कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। हर कोई खुशी से निहाल हो गया। पूरी हवेली जैसे खुशी के समंदर में निहा हो गई और वो राज दाई और मेरी बच्ची के दरमियान एक राज बनकर रह गया। उस रात चौधरी साहिब वापस आ गए। उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। हर शख्स खुशी से झूम रहा था और मैं इर्द गिर्द के मंजर से बेखबर जल्द अज जल्द अपने बच्चों से मिलने की मुंतजर थी। चौधरी साहिब जब मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। उनकी आंखों में उदासी सी उभरी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा, बस एक दिन हवेली में रह लो फिर चली जाना। मेरे दिल में वापसी का सोचकर अजीब सी चुभन पैदा हुई। न जाने वो कैसा एहसास था। आंसू खामोशी से आंखों के किनारों को भिगोते हुए निकले, मगर उस वक्त मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से जाती, क्योंकि कुछ देर पहले ही तखलीक के मरहले से गुजरी थी। अगले रोज हवेली में बहुत बड़ा जश्न रखा गया। शाम होते ही मुझे हवेली की बड़ी सी गाड़ी में मेरे बच्चों के लिए ढेरों तहाइफ के साथ वापस भेज दिया गया। ये तो उनका ज़र्फ था कि उन्होंने मेरे बच्चों का ख्याल किया। उस रोज मैं बेहद खुश थी और जैसे ही घर दाखिल हुई, मेरे बच्चे एकदम खुशी से मेरी जानिब लपके। मेरे सब बेटे मेरे गले लगकर रोने लगे। वो सब मेरी याद में बेचैन थे, पर वो नहीं जानते थे कि मैं उन तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलात का सामना कर आई हूँ। मेरा शौहर काफ़ी बीमार था, बिस्तर से लग गया था, लेकिन मुझे देखते ही उठ बैठा। मैं बच्चों से छूटते ही उसके पास गई, सारी आपबीती सुना दी। मैं जानती थी कि वो मेरी बात पर यकीन करेगा, क्योंकि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और ऐसा ही हुआ। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। बच्चों में इतनी समझ नहीं थी कि वो मुझसे कोई सवाल जवाब करते। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई, बशीरे ने मुझसे शादी कर ली और हम फिर से वही जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन मेरे दिल में बार बार यही कसक उभरती कि मेरी औलाद जो महलों की हकदार थी, वो नौकर के घर पल रही है। मेरा बार बार अपनी इकलौती बेटी से मिलने का दिल करता है। एक तो मर्तबा छुप कर दाई से मिली और उसे कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे रूबरू होकर मिल न पाई। उसे दूर से ही झलक देखी थी। उसका नाम अक्सा था और वो बेहद हसीन थी। मेरी आंखें ममता के एहसास से आंसू से भर गईं। मैंने कभी अपनी बेटी के बारे में बशीर को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे भी बेटियां बड़ी प्यारी लगती हैं। वक्त यूं ही नहीं गुजरता गया और पता भी नहीं चला कि 20 साल का अरसा बीत गया। आज मुझे अचानक हवेली से एक पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें मुझे चौधरी दिलावर के बेटे की शादी में मदऊ किया गया है। और हैरत की बात तो ये है कि उसकी दुल्हन के नाम की जगह मिसबा का नाम लिखा हुआ है, वही मिसबा जिसे मैंने नौकरानी के हवाले किया था। 25 साल बाद अब उसे अपना हक मिल ही जाएगा। ये सोचकर बार बार मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आखिर मेरे दिल से ये आखिरी एहसास निदामत भी खत्म हुआ। लेकिन मैं ये सब आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मैंने बच्चों का ये रद्द बदल करके ठीक किया?
کیا مجھے اس بارے میں چودھری دلاور کو بتا دینا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔